Good morning, children. So we are beginning lecture number 3 of chapter 1, that is arrival of Europeans in India. Now see, children, let us revise lecture 2. In lecture 2, I have explained you in detail about how Portuguese came to India, and for 100 years they have dominated Indian trade for almost 100 years. Because you see, we are studying in 1498 when they came to India. They were the lone Europeans who traveled to India and Europe. Then in 1600 AD, British East India Company came. So now you tell me, children, what is the gap between 1498 to 1600? Almost 100 years. So in that 100 years, they have earned enormous wealth. Trading with India was very, very profitable to them. Portuguese became rich, and this was due to all the efforts of that time king, erstwhile king rather, King Henry. In history, it is said Henry the Navigator. Portuguese was on the rise, which kept other European nations sulking. Why? How? They can compete with Portuguese. But Portuguese were successful to keep this secret trade route for almost 100 years. And after 100 years, rich merchants of England established East India Company. Meantime, Portuguese were powerful over here. So, when in 1600 AD, first ship of East India Company arrived, permission was denied by Mughal Emperor. Permission was denied because Portuguese did not want any competition. Right? Then, once again, the effort was made in 1613 AD. This time, they got the permission, and they were successful to establish their first trading center at Surat, which is in western part of India, Gujarat. हमारा जो गुजरात है उसका. But at that time, Surat, that whole western part of Gujarat, India, was dominated by Maratha, as I told you in second lecture. I am reminding you all these things for 5 minutes so you can cope up in third lecture. As Marathas were powerful in western India, British were new in India, Portuguese were almost established. So they smelled a danger कि भैया अगर हम इधर रुके और शायद कुछ तकलीफ पड़ी तो हमको वापस जाना पड़ेगा, सदा के लिए हमारे घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे. इससे तो अच्छा है हम कोई सेफ जगह चले जाए, अच्छी जगह चले जाए. तो ये सोच के ब्रिटिश ने सूरत से साउथ में चेन्नई को चुना. राइट? सेंट जॉर्ज, उस वक्त चेन्नई नहीं था, मद्रास नहीं था, सेंट जॉर्ज उसका नाम दिया. और उसके बाद वो ईस्ट में चले गए. ईस्ट में नाम दिया कलकत्ता का हुगली, कलकत्ता नहीं हुगली, फोर्ट विलियम्स. और व्यापार बढ़ने लगा, व्यापार करने लगे. आहिस्ता आहिस्ता अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन भी पड़ी, सोचा कि चलो इधर काम बनाते हैं, काम भी डालना शुरू किया. मतलब नाउ दे स्टार्टेड टू हैव पॉलिटिकल एक्टिविटी अलॉन्ग विद इकोनॉमिक एक्टिविटी. दोनों साथ साथ चल रहे थे. एक साइड पोर्चुगीज का दबदबा था, और कुछ समय बाद 1668 में फ्रेंच लोग आए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई
और उसके बाद फ्रेंच लोग आए। अभी यूरोप में 17-18 सेंचुरी फ्रांस और इंग्लैंड की जबरदस्त दुश्मनी थी, राइवलरी। जितनी उन लोग को पोर्चुगीज से नहीं थी दिक्कत, उससे कई गुना ज्यादा फ्रेंच लोगों से थी। तो इसीलिए जब फ्रेंच लोग हिंदुस्तान आए तो ये राइवलरी एक क्लैश में बदल गई। They started to fight on Indian soils, right? Because both of them wanted to establish monopoly in Indian trade. जहाँ जहाँ जाते थे वो लड़ते झगड़ते थे। हिंदुस्तान में भी वही किया, तो लड़ाई झगड़े शुरू हुए। इसमें हिस्ट्री में एक टॉपिक है, मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था, 3 मैसूर वॉर्स। साउथ इंडिया में फ्रेंच का जो कॉलोनीज था, क्योंकि वो लोग भी साउथ में सेटल हुए थे, ब्रिटिश भी साउथ में थे, तो जाहिर झगड़ा होगा। तो ये 3 वॉर जो हुए 1746 से लेके 1763 तक, 17 इयर्स में 3 वॉर हुए, बराबर। दिस आर कॉल्ड 3 मैसूर वॉर्स। तीनों वॉर में फ्रेंच लोग हारे, ब्रिटिश इमर्ज विक्टोरियस। और इसकी वजह से फ्रेंच का जो इंडिया में सपना था एस्टैब्लिशमेंट का, वो धुंधला हो गया। नाउ दे वर जस्ट लिमिटेड टू फ्यू ट्रेडिंग सेंटर्स, बिकॉज 3 बार वो हार चुके थे, बराबर। पोर्चुगीज को भी सबक सिखाया ब्रिटिश ने, उसने भी अपना काम सीमित कर दिया। जब कोई नहीं था तब उसके पास कई सारे ट्रेडिंग सेंटर्स थे, लेकिन अब उसके पास सिर्फ बचे थे दीव, दमन एंड गोवा। फ्रेंच लोग के पास बचे थे चंगानगर, माहे, कारिकल एंड पौंडीचेरी। डच लोग पहले चले गए बिकॉज दे कुड नॉट स्टैंड अप द कॉम्पिटिशन। तो ये सारी चीजें 18th सेंचुरी में हुई। उसके बाद ब्रिटिश का दबदबा बढ़ता गया। They started to take interest in political activities as well as economic activities. एक साइड से व्यापार धंधा करते थे, एक साइड से हमारे पॉलिटिकल सिचुएशन का फायदा उठा के टांग वगैरह बढ़ाना शुरू कर दिया। तो आहिस्ता आहिस्ता जब वो लोग सेटल हुए, ज्यादातर उसका कॉन्सेंट्रेशन ईस्ट में था। कई सारे राजे महाराजों को ये पता था कि ब्रिटिश हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन अंदर का यूनिफिकेशन नहीं था। जो बोलते अंदरों अंदर सब नહોતો, कोई राजा हो, બધા એકબીજાને પાણી દેવા માટે, એકબીજાનું ખરાબ કરવા માટે જેલસીથી પીડાતા હતા, અને એ જ પરિસ્થિતિનો બ્રિટિશે ફાયદો લીધો કે કોઈ યુનિફિકેશન નહોતું, કોઈ યુનિટી નહોતી, સમજ શક્તિ નહોતી, એટલે આ પરિસ્થિતિનો એ લોકોએ ફાયદો લીધો. Now what happened? As time passed, British became strong in East India, eastern part of India, and they started to build forts around their trading centers. So it would serve two purposes. One, they can store goods for a long time, and second thing, they can train the army. उधर से वो लोग जो लाते थे सैनिक को अपने, उसको वो ट्रेनिंग दे सके, माहिर कर सके, ताकि छोटी मोटी लड़ाइयाँ लड़ सके. Now in this part, Siraj Uddola became the Nawab of Bengal. He was very far-sighted, but because of his haughty nature, उसके दोस्त कम थे, दुश्मन ज्यादा थे. बाकी वो एक अच्छा रूलर था, हिस्ट्री में उसको बोला कि वो अच्छा रूलर.
उसका स्वभाव उसका दुश्मन था। और यही वजह से जब उसने देखा when he became the Nawab of Bengal, he saw that British are expanding themselves, and this is really injurious for coming years. And that is why he ordered his army to pull down the कोठीज which were built around training centers. क्योंकि उसका रीजन बिल्कुल साफ था ना कि भैया आप व्यापार करने आए हो इधर, आप लोग व्यापारी हो, तो व्यापारी को जो मतलब चीजें दी जाती है, व्यापारी को जो सुविधा मिलती है, अपना व्यापार करना, माल सामान ढूंढना, माल सामान रखना, उसका ट्रांसपोर्ट करना, टाइम टू टाइम टैक्स भरना, वो सब आपको मिलता है। तो कोठीज लगाने की जरूरत क्या थी? Why you are building कोठीज? There is no reason. कोठीज बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है समझ में। तो सिराजुद्दौला ने कोठीज गिरा दी ट्रेनिंग सेंटर के आसपास। This news reached in South in Madras, where the head representative of East India Company, Robert Clive, was present. Clive became very angry क्योंकि उसके मन में खोट थी, पाप था। So instantly he marched towards Calcutta, along with small army of almost 1,200 soldiers. When he came to Calcutta, that is called Hooghly, he started to study all the data. डायरेक्ट वॉर नहीं हो सकता, तो डेटा के हिसाब से मुझको मालूम पड़ा कि ही कैन नॉट आउटराइट डिफीट सिराजुद्दौला। आउटराइट तो उसको हरा नहीं सकते थे, क्योंकि सिराजुद्दौला पावरफुल रूलर था, एक अच्छा शासक था, और सबसे बढ़िया बात ये थी कि उसके पास 66,000 army था। So it was next to impossible that the army of 66,000 can be defeated by just an army of 1,200. So Robert Clive went on treachery, गद्दारी पे उतर आया। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, सिराजुद्दौला के बहुत से ज्यादा दुश्मन थे, एक एक को ढूंढना शुरू किया। उसमें उसको सिराज का सबसे विरोधी ज्यादा सेठ जो था, बंगाल का बहुत बड़ा व्यापारी, अमीचंद मिल गया। अमीचंद के जरिए उसने सब पता लगाया, तो उसको मालूम पड़ा कि उसका जो कमांडर इन चीफ है वो बहुत लालची है, ओवर एम्बिशियस है, जिसका नाम मीर जाफर था। उसको अब ब्रैग करे, उसको अब अगर हम अपनी साइड ले ले तो हमको फायदा हो सकता है। और यही स्ट्रेटेजी की वजह से अमीचंद के साथ मीर जाफर को लिया गया। मीर जाफर को बताया गया कि अगर हम सिराजुद्दौला पे वॉर डिक्लेयर करते हैं, आप कमांडर इन चीफ हो, आपको तो लड़ना पड़ेगा, लेकिन लड़ाई में आप इनएक्टिव हो जाना, और अगर सिराज हारा तो हम आपको राजा बना देंगे बंगाल में। ये भी उसी बात में आ गया, और सब जो सेट किया था प्रीवियसली, वही सेटिंग के हिसाब से there was a first battle between Indians and British was fought, which in history is called Battle of Plassey. It is called Battle of Plassey. Everything was decided, everything was set, nothing was to be done with. फिर आधे दिन में सिराज ने मीर जाफर ने हथियार डाल दिया, he became inactive, सिराज नहीं लड़ पाया। तो एक ट्रेजेडी देखो आप बच्चों, इतना बड़ा आर्मी आधे दिन में हार गया ब्रिटिश के सामने, छोटे से आर्मी के सामने।
and as per promise made by British, they got right to collect revenue and right of trading in the area of 24 परगानास। बंगाल में उसको 24 परगाना बोलते हैं। 24 परगाना नामक जो इलाका था, बहुत रिच इलाका था इंडिगो के लिए, मसलिन के लिए, उसको लाइसेंस मिल गया ट्रेडिंग के लिए और मीर जाफर को नवाब बनाया गया। सिराज डिफीट हुआ था। तो ये बात चलती रही, 5-7 साल चला, लेकिन फिर दिक्कत आई, राइट? फिर दिक्कत आई। मीर जाफर ओवर एम्बिशियस बन गया 1-2 साल में। वो एक्चुअली ब्रिटिश का प्यादा था, लेकिन 1-2 साल के बाद वो ब्रिटिश को मानना बंद कर दिया। So British dethroned him, and once again Sirajuddaula became the king of Bengal. वापिस सिराज ने माथा कुछ शुरू की। तो अभी वॉर जो होने वाला था वो मीर जाफर, मीर कासिम के साथ हुआ। मीर कासिम में वो सिरोज का son-in-law था, and he was also a commander-in-chief. So the same strategy which was applied in Battle of Plassey was now applied in Battle of Buxar. मीर कासिम को राजा बनाया, लेकिन कासिम मीर जाफर से ओवर एम्बिशियस था, उसको हटाया, वो भाग गया। आसपास के 3 राजा की मदद ली उसने, नवाब और राइट शाह आलम और तीसरा मीर कासिम, तीनों ने मिलकर ब्रिटिश को चैलेंज किया और दैट बैटल इज कॉल्ड बैटल ऑफ बक्सर। नाउ लेट अस सी बैटल ऑफ बक्सर। तो ये मैंने आपको सेकेंड जो लेक्चर हमने खत्म किया था, सेकेंड लेक्चर का मैंने आपको रिवीजन समझाया ताकि आप वो वापस उसके साथ बन सके, बराबर है? नाउ विल स्टार्ट विद our topic that is called Battle of Buxar. Okay, children? Shall I start? Okay. The British made Mir Jafar the Nawab of Bengal, and under different pretexts tried to extract plenty of wealth from him. एक चार्ज, दूसरा चार्ज, तीसरा चार्ज, ऐसे ब्रिटिश चार्जेस लगाते गए और उसने बंगाल को लूटना शुरू किया। मीर जाफर ने विरोध किया कि भैया ये सब बात नहीं हुई थी, ये तो मैं तो सिक्के का राजा बन गया, सही राजा तो आप हो, लूटपाट आपने मचा रखी है। तो इसीलिए ये बात पे ब्रिटिश और मीर जाफर के बीच में तनातनी हुई, बराबर? ड्यू टू दिस ग्रीड टू गेन मोर पावर, ईस्ट इंडिया कंपनी मैनेज टू डिथ्रोन मीर जाफर एंड मेड मीर कासिम, जो उसका जमाई था, बराबर? मीर जाफर है, उसकी लड़की का हस्बैंड था, सन-इन-लॉ। मीर जाफर कासिम द नवाब ऑफ बंगाल, जाफर की जगह कासिम को बिठाया। मीर कासिम प्रूव मोर एम्बिशियस देन मीर जाफर, जाफर से तो ज्यादा कासिम एम्बिशियस था। उसने तो सारी हदें पार कर दी थी, ऐसा समझो, एंड थस became a threat to the company. He became a threat to the company. Hence, Mir Qasim proved to be more ambitious than Mir Jafar, and thus became a threat to the company. Hence, Mir Qasim was removed. Qasim को हटाया, and Mir Jafar once again became the Nawab of Bengal. बराबर? जाफर को वापस नवाबशिप दे दी। मीर कासिम took refuge with the Nawab of Oudh, वो भाग के चला गया अयोध्या। और उसके जो नवाब थे
उधर ने शरणागति दे दी, बराबर। उसकी मदद के लिए उसने गुहार लगाई। Mir Qasim took refuge with the Nawab of Awadh. During this time, the Mughal Emperor Shah Alam had come to Awadh. उस वक्त मुगल एम्पर शाह आलम थे, वो उधर आए थे। शाह आलम से बात हुई कि अभी पानी सर से ऊपर जा रहा है, अभी हम ब्रिटिश को नहीं रख सकते, प्रॉब्लम होगा आगे जाकर। तो इन तीनों ने प्लान बनाया कि भाई कैसे हम ब्रिटिश को निकालें, बराबर है। मीर कासिम took a refuge with the Nawab of Awadh. During this time, the Mughal Emperor Shah Alam had come to Awadh. So all three of them decided to join hands and fight the company unitedly, and thus the war was declared. कंपनी को सदाकाल के लिए हिंदुस्तान में से निकाल दे, वो मंसूबे के साथ तीनों ने अपने अपने आर्मी खड़े किए, प्लान बनाया और तीनों मिलके कंपनी के सामने लड़े। तीनों को हराया कंपनी ने। अब कंपनी पावरफुल बन चुकी थी, एंड बिकॉज ऑफ दिस वॉर दे गॉट द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम 3 huge areas of East India, that was for Bihar, Bengal and Orissa. ये तीनों जो बड़े बड़े प्रांत थे उस वक्त नहीं थे, ये जो तीनों बड़े प्रांत थे उसमें से सारी चीजें, सारी माल मिलकर, सारा व्यापार कंपनी के हाथ में चला गया। कंपनी also got a boost कि भाई अगर हम इन लोग को हरा सकते हैं तो हमको इसमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। Now let us establish our power in India. They were encouraged after Battle of Buxar. At Buxar, the East India Company fought against the United Army on 22nd October 1764, in which the United Army lost. तीनों लोग को हराया। Thus, the company got the Diwani rights. Diwani rights means right to collect revenue from Bihar, Bengal and Orissa. तो ये था establishment of British rule in India. पहले बैटल ऑफ प्लासी हुई, तब उसका स्टैंड बना, और बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिश का एक फिक्स फुटहोल्ड बना, क्योंकि तीनों आर्मी को हरा सकते हैं, तो उसको अंदर एक मोमेंटम मिला, एनकरेजमेंट मिला, एक पैशन मिला कि भाई ये हम कर सकते हैं। देन व्हाई डोंट वी स्टार्ट एस्टैब्लिशिंग पॉलिटिकल पावर, एंड इफ पॉलिटिकल पावर इज एस्टैब्लिश्ड, ये पॉलिटिकली हिंदुस्तान अगर हमारे कब्जे में आ जाता है तो हम हिंदुस्तान के राजा बनेंगे और जितना निचोड़ सके, क्योंकि इंडिया तो पहले से लैंड ऑफ प्लेंटी था, ब्रिटिश की नज़र तो थी ही, क्योंकि उस वक्त के कई सारे राजे रजवाड़े कितने रिचीज थे। अगर आज आप नापो तो वर्ल्ड के 100 बिलियनर्स में से 90 तो इंडिया के होते, इतने बड़े बड़े रिचीज थे। तो अगर ये सब दौलत मिली तो इंग्लैंड वुड बिकम रिचर, और वो लोग तो भिखारी ही थे, क्योंकि 600-700 साल तक डार्क एजेस में जिए, फिर क्रूसेड हुआ, फिर व्यापार धंधा का आया, तो एक भिखारी को अगर कोई सल्तनत मिल जाती है, अगर इतनी दौलत मिल जाती है, तो वो भी पागल हो जाएगा ना, वैसा ही होगा। तो 67 की बैटल, 64 की बैटल के बाद कंपनी ने सोचा कि why don't we concentrate in establishing our political power, and that is why इंग्लैंड में अभी ये तय हुआ
कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये जब बात मालूम पड़ी कि इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया है एंड दे वर सक्सेसफुल इन एस्टेब्लिशिंग देयर रूल, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक लॉ पास हुआ जिसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के हिसाब से ईस्ट, वेस्ट और साउथ के जो प्रोविंस है, ईस्ट में मुंबई बना था, सॉरी ईस्ट में तो कलकत्ता था, सॉरी साउथ में मद्रास था और वेस्ट में मुंबई था। अभी मुंबई भी ले लिया था पोर्चुगीज के पास से ब्रिटिश ने। तो ये तीनों प्रोविंस कलकत्ता से रूल किए जाएंगे बिकॉज एट दैट टाइम कलकत्ता वाज द हेडक्वार्टर। वो दिल्ली तो बाद में आया लेकिन दिल्ली कलकत्ता हेडक्वार्टर में था एंड द हेड पर्सन ऑफ दैट हेडक्वार्टर वाज कॉल्ड गवर्नर जनरल। So Governor General was established for every 5 years. He was supposed to come to India. And what was his duty? To expand British rule in India. लूटपाट, expansion, काला दावा करना, गद्दारी करना, जालसाजी करना, कुछ अच्छा काम नहीं था। By hook or crook, expand the British power. है समझ में? By hook or crook. You have to expand the British power. तो यही बदौलत रेगुलेटिंग एक्ट बना। What is meant by regulating act? Expansion of the company rule. According to English government, passed the regulating act in 1773 AD. ब्रिटिश पार्लियामेंट में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ जो भी मैंने बताया। According to which Governor of Bengal was made the Governor General for all the trade and political activities of the country, of the company which was under his direct control. That means Calcutta became the headquarter of East India Company. कलकत्ता में जो गवर्नर रहते थे वो सर्वे सर्वा थे, उसके पास अनलिमिटेड पावर्स थे, वो सारे डिसीजंस हिंदुस्तान में रह के ले सकते थे। और मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर थे उन लोग को कलकत्ता के गवर्नर को रिपोर्टिंग करना था। मतलब मद्रास एंड मुंबई वाज प्लेस्ड अंडर गवर्नर ऑफ कलकत्ता, गवर्नर जनरल, राइट? द मुंबई मद्रास गवर्नर एंड हिज काउंसिल मीन्स एडवाइजर्स, राइट, वर ब्रॉट अंडर हिम। थस वॉरेन हेस्टिंग्स became the first governor general of और ये तय हुआ और सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर बन के आए। ड्यूरिंग हिज टेन्योर क्या क्या उसने किया था? द फर्स्ट मराठा वॉर एंड द सेकेंड मैसूर वॉर विद हैदर अली ऑफ मैसूर वाज फॉट। 5 साल में वो 2 लड़ाइयां लड़ी, एक मराठा के साथ लड़ाई हुई और एक हैदर अली के साथ लड़ाई। The problems of the East India Company increased because it has to face 2 powerful enemies simultaneously. क्योंकि मराठास भी पावरफुल थे और हैदर अली भी पावरफुल थे, राइट? सो ईस्ट इंडिया कंपनी की नाव उलट होने लगी। कॉर्नवालिस took over गवर्नर जनरल आफ्टर वॉरेन हेस्टिंग्स। ये समय वॉरेन हेस्टिंग्स का खत्म हो गया, उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस आए। ये समय उसने क्या किया? ड्यूरिंग हिज टेन्योर ऑफ कॉर्नवालिस द थर्ड मैसूर वॉर टुक प्लेस विद टीपू सुल्तान, राइट? 2 तो लड़ाइयां लड़ी थी, तीसरा युद्ध हुआ, बराबर, टीपू सुल्तान के साथ। तब तक हैदर अली मर चुके थे और हैदर अली की जगह टीपू सुल्तान ने मैसूर की गद्दी संभाली थी। वो मैसूर के राजा बन चुके थे। He was called Tiger of Mysore, Sher-e-Mysore, right? The third Mysore war took place with Tipu Sultan, famously called the Tiger of Mysore.
Cornwallis had a joint plan with the Maratha, joint hand with Marathas and Nizam to defeat Tipu Sultan. Cornwallis चालाक था थोड़ा, मराठा के साथ उसने दोस्ती कर दी और ये मराठा भी मूर्ख थे। 3 साल पहले लड़ाई हुई थी, अभी दोस्ती कर दी ब्रिटिश के साथ और उसका उपयोग उसने टीपू के सामने किया। निजाम से दोस्ती की। निजाम भी टीपू का दुश्मन था और ब्रिटिश को ये सब मालूम था कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन है। तो ये परिस्थिति का फायदा लेके मराठा और निजाम को अपने साइड किया और तीनों लोग ने टीपू को डिफीट करने का प्लान बनाया। टीपू could not win against the combined forces and he has to accept the treaty. हार सहनी पड़ी, टीपू को हार का सामना करना, बराबर है। तो ये बात हुई थी। तो पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। सबसे पहले आफ्टर रेगुलेटिंग एक्ट हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो कैसे? हेस्टिंग। हेस्टिंग के वक्त में 2 लड़ाई हुई थी, एक हैदर अली के साथ और एक मराठा के साथ। ये टाइम उसका खत्म हुआ और उसके बाद कॉर्नवालिस आया। कॉर्नवालिस के वक्त जो सिस्टम थी उसने आके सीधे मराठा से दोस्ती कर ली, पहले निजाम से दोस्ती कर ली। उसको मालूम था कि निजाम और मराठा दोनों टीपू के दुश्मन हैं, बराबर है। तो ये तीनों ने दोस्ती करके टीपू को हराया और मैसूर जीत लिया गद्दारी से। क्योंकि ये तो उसकी चाल थी, ऐसे आपको मालूम है कैसे वो लोग काम करते थे, बराबर है। सो टीपू कुड नॉट जॉइन फाइट अगेंस्ट द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ निजाम, British and Maratha, and thus he was supposed to accept the defeat. But after Cornwallis, Sir John Shore came to India, पर वो निकम्मे साबित हुए, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो उसका 5 साल का समय खत्म होने के पहले ही उसको वापस बुलाया गया कि भाई चलो आप वापस आ जाओ, आप हिंदुस्तान में नहीं चल सकते क्योंकि आप सीधे सरल इंसान और हमको ऐसा नहीं चाहिए। उसके बाद सबसे खतरनाक गवर्नर जनरल हिंदुस्तान में आया, was called वेलेस्ली। वेलेस्ली ने अभी तक 1773 से लेके आज तक जितना ब्रिटिश ने कॉन्कर नहीं किया था उतना काम वेलेस्ली ने 7 साल में किया। 7 साल तक वो हिंदुस्तान में रहा और 7 साल में ऐसा कहा जाता है ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश रूल। 80% हिंदुस्तान को गुलाम बनाया था, राइट। सो लेट अस स्टडी अबाउट वेलेस्ली। व्हेन ही केम टू इंडिया ही इंट्रोड्यूस्ड सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, राइट। क्योंकि सब्सिडरी अलायंस सिस्टम में वो सबसे माहिर था और इसकी वजह से वो बन सका कुछ। आफ्टर कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर became the governor general. Due to some rigid policies adopted by him, East India Company's fame declined and Marathas became stronger. कॉर्नवालिस ने जो मराठा से दोस्ती की, जॉन शोर ने वो दोस्ती तोड़ दी, वो रिजिड था और इसकी वजह से मराठा दुश्मन बन बैठा वापस। तो ये तो नहीं चल सकता, मराठा से बैर नहीं कर सकते क्योंकि मराठा बहुत पावरफुल था। तो इसीलिए वापस उसको बुलाया गया, उसकी जगह वेलेस्ली आया। सो गवर्नर जनरल वेलेस्ली
came after John Shaw, who got the responsibility of making company supreme in India. कंपनी का आकार बहुत बढ़ाना था, स्ट्रॉन्ग करना था. For this, Wellesley introduced subsidiary alliance system. Right? The condition of this system, who adopted this, was, वो मैं आपको subsidiary system क्या है, अभी तो टाइम नहीं है, इसीलिए इसे पढ़ता हूँ, लेकिन पूरा आपको अगले लेक्चर नंबर 4 में सिखाऊंगा, वो वापस सिखाऊंगा. राइट? Terms and conditions of subsidiary alliance system. Number 1, the army train, ये सब पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में, चिंता मत करना. The army trained by East India Company will be provided to a state that accept the system. हिंदुस्तान आके उसने एक स्कीम बनाई. हम कैसे ऐसे रिलायंस की स्कीम में जाता है, बिग बाजार की स्कीम में जाते हैं, उसने एक स्कीम बनाई सब्सिडियरी सिस्टम की. वो स्कीम क्या थी असल में, वो आपको मैं बहुत डिटेल में लेक्चर नंबर 4 में समझाऊंगा. In return, the state accepting this system will provide for the army or give away some province equivalent income to the British. ब्रिटिश आर्मी देने वाले हैं, ट्रेनिंग में सब देंगे, लेकिन उसके वजह से आपको उसको इतनी इनकम देनी पड़ेगी. Without the permission of a company, the state will not wage war or sign treaty with other states. यह सबसे खतरनाक मुद्दा था, क्योंकि ब्रिटिश को मालूम था किसके साथ किसकी दुश्मनी है, किसकी दोस्ती है. वो दुश्मन को भिड़कते थे, दोस्त को अलग करते थे, और यही वजह से उसका परिणाम भारी रहा. समझो, there will be one compulsory English representative in the state assembly. No other foreigners will be employed in the state. तो indirectly पोर्चुगीज और फ्रेंच का पत्ता काट दिया. Only one foreigner, that was for British. उसके अलावा कोई नहीं जा सकता. समझो, the states, the ruler who accepted this system was निजाम ऑफ हैदराबाद. विश्व तो उसके पास आ ही गया था. नवाब ऑफ अवध पहले से आ चुका था. गायकवाड़ हमारे वडोदरा के, सिंधिया इंदौर भोपाल, भोसले पूना, एंड होलकर इंदौर के. अभी आप उसकी सीरियल आते हैं महारानी अहल्याबाई. राइट? तो ये सब जो लोग थे, ये जो स्टेट्स थे, वो इन लोगों ने ये सिस्टम एडॉप्ट किया, क्योंकि नाम अच्छा था. पहले बहुत अच्छा बताया था इस सिस्टम के बारे में, फिर जाके पता चला कि ये सिस्टम कितना खतरनाक था. बराबर? तो ये सिस्टम में क्या था, उसमें क्या कमी थी, और हम कैसे चीट हो गए, हमारे राजा कैसे उगते जन्म आ गए, वो मैं आपको 4th लेक्चर में सब बताऊंगा. नाउ इट इज योर टाइम टू टेक योर होमवर्क. कम ऑन चिल्ड्रन. Question number 1. Write a short note on Battle of Buxar. Write a short note on Battle of Buxar. This mention in brief. Mention in brief the
achievement of Cornwallis. Achievement of Cornwallis. राइट, तो ये दो क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए। सब्सिडियरी सिस्टम समझाना बाकी है, इसीलिए मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा के होमवर्क में देंगे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बैटल ऑफ बक्सर। मेंशन इन ब्रीफ द अचीवमेंट ऑफ कॉर्नवालिस। तो आज हम ये लेक्चर खत्म करते हैं। आज मैंने आपको बताया बैटल ऑफ प्लासी के बारे में और बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। उसके बाद हमने रेगुलेटिंग एक्ट लिया, उसके तहत हेस्टिंग आया इंडिया, कॉर्नवालिस आया, सर जॉन शोर आए, और उसके बाद वेलेस्ली का हमने अधूरा छोड़ा है, जो फोर्थ लेक्चर में काम करेंगे, लेकिन दो का क्लियर हो गया। तो विद दिस आई एम एंडिंग माय लेक्चर। We'll meet you in fourth lecture. Till then, goodbye. Take care.